Lesson 2, diversity. So before to start this or write the full name of this lesson, we have to start with what is diversity. Because in the previous lesson, you have read about this. Clear? So, it's clear? Then, so when we talk about the diversity, I want to know what is the definition of diversity, or what do you will understand from diversity? Tell me. Tell me. Because, yes, tell me. You can also tell me the Hindi meaning of diversity. So that's why we started. Vividita. Yes, very good. Vividita or Vibhinita, whatever it's. But in more appropriate way, we can use the word Vividita. Clear? And I am asking, in which country you are living? India. Very good. You are living in India. So when we talk about the India, is it appropriate to say that this country or this country consists diversity or not? मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर भारत देश की आप बात करते हैं, विविधता जो शब्द है इसके परिप्रेक्ष्य में पूरक है कि नहीं है? Yes. Yesterday I told you that today we will start with the civic, social and political life, lesson number 2. Because I asked that you told it to start this, diversity. If you have any doubt regarding the first lesson or you want revision, then after finishing this, again we will go to revise this. Because right now we have started. Tell me. Yes. Sir, your video is not clear. Really? But I have seen you clearly. No, sir. Maybe from your side there will be a network problem because I have seen you very clearly. Yes, sir. आपकी भी वीडियो क्लियर है. हाँ, तो अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. मैंने बात की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि क्या इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में विविधता शब्द या विविधता का जब इंग्लिश लेते हैं डाइवर्सिटी, तो ये कहना एप्रोप्रिएट है? हो जाए. एप्रोप्रिएट का मतलब सही है इसको कहना? बताइए. सही है. सही है. From the land of diversity. Yes, sir. Once more, the one girl I think spoke about this. Yes, sir. सही है. So, just tell me or explain. Sir, yes, sir. India is a land of diversity. Very good. India is a land of diversity. Very good. But in which way you can explain? In food and culture. All the words are clear. If you have any doubt regarding with any spelling, you can ask. Just I have written. I have not written the full name of this lesson, because after finishing this or understanding once more, we will write the full name of the lesson. So, diversity in the context of India, and the one girl told about that yes, India is a land of diversity. But how can we prove with this word that yes, India consists of wild wild means we can say wild in a very big way diversity, multifarious diversity. Food and culture and dress. Just I want to listen. Try to listen this girl. Shivangi saying.
India is the land of diversity. Once more, listen. All of you have to please shut your mouth. I want to listen. Shivangi Singh, yes. Sir, with the help of food, culture, dress, or geographical area, we can say that India is a land of diversity. Very good. This girl told about she talked about the diversity. Try to see this on the way of first of all food, on the way of dress, on the way of religion, on the way of culture, On the way of manner. in the way of manner. Very good. At the last, because there is too much, we lastly use the word etc. Is it clear? Yes, sir. So that's why. Food from north to south and from east to west. If you visit to India, you will find the food is different and with the different flavors. If you visit to the north, East India, you will find the people of that region never use the groundnut oil. They always used to eat the boiled food. If you visit to south, you will find that the people of that area eat idli, sambar, whatever. Clear? Then if you visit to Gujarat, the people of that area used to eat dhokla, and in most probably dishes they use sugar. Clear? So that's it. Then dress, the different religion culture, and if you understand about this, I want to tell about the mask. Mask. Right now you are seeing the mask on the many of the people faces. But if Yes, sir. you see the Jain monks, Yes, sir. एक monks होते हैं Jain, you will see, and they belong to that specific उससे होता है, and this is श्वेतांबर. नीचे जो लिख रहे हैं दिख नहीं रहा है बेटा, मैं यहाँ लाइट ज्यादा पड़ रही है, मैं इसको इधर लिखता हूँ, ध्यान से देखिए. इधर वाला दिखेगा श्वेतांबर, ध्यान से देखिए श्वेतांबर. श्वेतांबर का मतलब ये जैन के रिलेटेड होते हैं, एक उसका समुदाय है, और इस स्पेसिफिक रिलीजन के लोग का ये जो वो है, ये मोस्टली आज हम मास्क जो पहनते हैं, दे ऑलवेज वियर द मास्क, एंड दिस मास्क कंसिस्ट ऑफ व्हाइट कलर. ठीक है. देन रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन है. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन. Then many more religion also. There are some people who don't believe in religion also. They also form a religion category, that they are atheists. Clear? Then culture. सबका culture है ना? The someone is wearing the lungi, someone is wearing the dhoti, kurta, and many more things. Someone is like me, dressed in a well manner, means wearing short and pant. Then manner. We can say in the manner, the way to practice their religion. The someone is folding the hand. He belongs to specific religion, and the someone is praying, and while opening to pray this. So they have their own custom and tradition and culture. Is it clear? Yes, sir. Yes, So sir. this is Indian context. Try to see this. Sir. So this is in the Indian context, we'll found the different and the vast diversity. Nobody's country in this world who has such a vast diversity. At every place, if you visit, just you cross the 3 kilometers away, you will find a different little bit in their languages. Vernacular languages होती है, वो भी थोड़ी different होती है. I listening some of the noise from the back side. If I will listen once more, I will go to the mute. So please
Don't do this. No, Is sir. it clear? सर जी कहिए। सर सर मास्क के नीचे क्या लिखा है? मास्क के नीचे मैंने जैन लिखा है। एक रिलीजन होता है जैन, ठीक है? तो जैन रिलीजन में जो एक दो संप्रदाय उसमें संप्रदाय होते हैं। संप्रदाय में श्वेतांबर होते हैं, दिगंबर होते हैं। मैंने सिर्फ श्वेतांबर के बारे में लिखा है, जो श्वेत मीन्स व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और व्हाइट कलर के कपड़े भी नहीं पहनते हैं। दे ऑलवेज वियर द व्हाइट कलर, और दे ऑलवेज यूज द व्हाइट कलर मास्क। तो मास्क बहुत पहले से यूज होता है उनके रिलीजन में, because they know about the virus or the microorganisms which you will not see by the naked eyes. So if you don't use the mask, they will enter in your mouth. So that's why earlier they take the precautions to save these microorganisms, and to save the life of these microorganisms they wear the mask. Clear? यस सर। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ लिया। Yes, sir. Now listen it very clearly, because the diversity leads to discrimination. कि किस तरह से डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट हो जाती है। बोथ आर जस्ट लाइक अ कॉइन। इफ यू उछालते हैं तो कभी हेड आएगा तो कभी टेल, और हेड एंड टेल इज प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ अ कॉइन। क्लियर? So diversity and the once more is, we can say, diversity and discrimination. Clear? अब ये डाइवर्सिटी किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन में फॉर्म होती है, यहाँ पर हमने देख लिया कि डिफरेंट फूड है, डिफरेंट ड्रेस है, डिफरेंट रिलीजन है। कभी कभार यही जो डिफरेंट चीज है, Yes, sir. यही डिफरेंट चीज झगड़े का कारण हो जाती है। In that way, when the someone is showing that in some manner they are superior than others, जो खुद बताता है कि किसी न किसी मैनर में वो उनसे क्या है, सुपीरियर है। तो जब सुपीरियर उनको शो करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट्स लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। इज इट क्लियर? This lesson is not going to be too much large, but your understanding should be clear. Because if your understanding should not be clear, you can't understood this lesson. Clear? जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आ रहा है, अब डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी मीनिंग क्या है? Who will tell about this? लीड्स क्या करता है? मैच देखते हैं? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो अगर आप टेस्ट मैच देखते होंगे या मैम ने Lead यानी control. यस, लीड माने कंट्रोल भी होता है। एक ही वर्ड के अनेकों मीनिंग होते हैं। अब देखिए, when you have read about the second lesson of history on the trail of the earliest people, am I right? ध्यान से, Yes, sir. on the trail of the earliest people, तो वहां पर लीड, ट्रेल, अब ध्यान से देखिएगा, ट्रेल वर्ड आ गया। टेस्ट मैच में, जब टेस्ट मैच होता है तो इस टेस्ट मैच में दो तरह के वर्ड यूज होते हैं। फर्स्ट, एक तो ट्रेल हो गया, दूसरा होता है लीड्स। ट्रेल माने की पीछे है, लीड माने की बढ़त लिया हुआ है। ठीक है? ट्रेल माने की पीछे है और लीड्स माने की बढ़त लिया हुआ है। तो लीड्स माने की आगे का वे शो करते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं। सो दिस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स दिस डाइवर्सिटी लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। ये आगे उसका मार्ग प्रशस्त करती है। जब बहुत ज्यादा क्या होता है, लोगों में मनमुटाव हो जाता है, या कह सकते हैं कि लोगों के अंदर उस चीज को दिखाने की, अपने आप को ऊपर सुपीरियर दिखाने की होड़ लग जाती है। जब अपने आप को सुपीरियर दिखाने की होड़ लग जाती है, देन इट ऑटोमेटिकली चेंज इनटू डिस्क्रिमिनेशन। इज इट क्लियर? Sir. ठीक है? Yes, sir. तो आपस में और थोड़ा बता सा दीजिए। क्या बता दे बेटा?
सर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए डिस्क्रिमिनेशन का मैंने अब तक तो बताया पूरा ओवरलुक। अब जब मैं हिंदी शब्द में इसका मीनिंग लिखूंगा समझ आएगा। डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा मतलब है, ध्यान से देखिए, भेद भाव। I think by just writing about the Hindi meaning, you can understand it properly. Clear? This is भेदभाव। भेदभाव समझते हैं ना, भेद करते हैं आपस में, तुम ये हो, मैं ये हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, या और भी चीजों को लेकर बाइफरकेशन जो होता है, दिस इज भेदभाव। सॉरी, is it clear? Yes So sir। if you'll understand about the diversity, it is not very difficult to understand about the discrimination. कि अगर आप डाइवर्सिटी को समझ लेते हैं या समझ पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप डिस्क्रिमिनेशन को भी समझ लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? अब आप जब ध्यान से प्रॉपरली आप टाइम लेंगे या प्रॉपरली टाइम पे क्लासेस लेंगे तो ऑटोमेटिकली सब समझ में आएगा। बट इफ यू विल टेक द क्लास देन हम छोड़ देंगे फोन वैसा। इज इट क्लियर? नाउ नाम कितना नहीं कर कार से डाइवर्सिटी। If you see the book, page number 13 of this lesson, first of all, everyone see this for this page number 13. आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लोगों ने हाथ को टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है, और यहाँ पर आप देखते हैं सबका डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल है ना? Yes, sir. And not only this, someone who dressed in a modern dress and someone who dressed in a traditional dress. Yes, sir. So I think you will understand about the traditional and Or sir, one man is sitting on wheelchair. yes, very good. The one man who is sitting on the wheelchair, it shows what? He is what? He is Tradition. handicapped. Handicapped. Clear? Yes, sir. And This sir, is flowers. also- This is also the part of diversity. Diversity का मतलब ये नहीं है कि कोई अगर किसी फिजिकली वे में थोड़ा अक्षम में है या मतलब कि डिसेबल्ड है तो उसको देखकर हम डिस्क्रिमिनेशन करें, उससे भेदभाव करें, लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसा करते हैं। Those who are the old student of Devastali, they can understand in the Hindi. They have read about lesson in Hindi, सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़े हैं आप लोग? Yes, sir. हिंदी वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि सुनीता कैसी थी, ठीक है? Yes, Disabled sir. थी। Yes, sir. Yes. तो वो भी क्या है? वो भी डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी है। सर वो भी हैंडीकैप थी। आप सुनीता हैंडीकैप थी ना? She needs someone who going to lift this, not means who going to help that girl to reach at any place, but वो नहीं चाहती थी। But the people see with the mercy eyes कि लोग उसको दया भाव से देखते थे, दूसरे नजरिए से देखते थे, उसके प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन वो नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो लड़का चेयर पे बैठा है। And not only this, according to the Indian Constitution, everyone is equal before the law. Whether he belong to any religion, whether he belong to any sex, whether he belong to any creed, caste, discrimination, every जो इतना जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी ही डिस्क्रिमिनेशन को लीड करता है, बढ़ाता है। और लोगों के मन में जैसे मान लीजिए कि कोई है, वो सोचे कि कोई डिसेबल्ड है यार, वो तो काम नहीं कर सकता ये, तो उसके मन में उसके प्रति क्या आ गई? एक हीनता की भावना आ गई। और कुछ लोग वहीं पर उसके लिए क्या सोचते हैं? सहानुभूति सोचते हैं।
लेकिन उनमें से कोई भी उसके प्रति समानता का भाव नहीं देखता है, तो उसको सहानुभूति देना या उससे घृणा के भाव से देखना, इस दोनों तरीके में क्या है, भेदभाव उत्पन्न होता है। और यही भेदभाव जो है डिस्क्रिमिनेशन है। समझ आ रहा है बच्चों को? डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी मीनिंग क्या होगा? किसका डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी मीनिंग लिखे हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी मीनिंग भेदभाव लिखे हैं। आप लोग ज्यादा उस वो ना हो, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है हिंदी में भेदभाव। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, ये भेदभाव शब्द ही डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग है। लेकिन सोशल साइंस में क्या होता है कि सिर्फ वर्ड्स का हिंदी मीनिंग से नहीं होता, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ, और यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। क्लियर? आ रहे समझ में बच्चों? समझ आ रहे सब बच्चों को? Sorry, comfortable. If any doubt, you can ask. But I don't want to listen from the background that someone is shouting behind you and talking. Is it clear? हैंडीकैप हैंडीकैप माने कि डिसेबल्ड, विकलांग, हिंदी में इसको विकलांग कहते हैं। तो विकलांग किसी भी प्रकार की अक्षमता, शरीर से संबंधित विकलांग लिख देते हैं दोबारा, क्योंकि थोड़ा सा वो नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिए। शारीरिक अक्षम या मानसिक अक्षम में जो होता है, ठीक है, दैट थिंग। क्लियर? दिख रहा है? विकलांग। सर लीड्स मतलब? लीड्स मतलब आगे जो दिखाता है, प्रेरित करता है। तो यही मैंने कहा कि प्रेरित करता है या आगे जाता है। यही जो डाइवर्सिटी है, मैंने बताया कि डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन में फॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। someone is shouting, someone is talking to someone else. While studying, don't do anything because it will disturb your mind and concentration. That's why. Clear? Now, अब ये समझा गया? मैं थोड़ा इरेज करूं, कुछ और भी थोड़ा इस पे टॉपिक पे और चर्चा हो। समझा रहे सब बच्चों को? अभी भी डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन वर्ड में ही घूम रहे हैं। अब मैं एग्जांपल के थ्रू और आगे आगे बढ़ूंगा और डेफिनेशन भी लिखूंगा। देखिए, मैं रब कर रहा हूं, आप लोग चाहते हैं तो कॉपी में एक जगह इसके वैसे ही लिख सकते हैं, जिससे आपको आगे की क्लास समझने में आसानी होगी। साथ साथ लिखते रहिए, जो जो उतारता हूं मैं, इससे आपको भी फायदा होगा। अब देखिए, अब भारत विविधताओं का देश है, इसमें कोई शक नहीं। कहा जाता है भारत में कि हर 3 कोस में पानी और वाणी का स्वाद बदलने लगता है। वाणी, वाणी माने कि बोलचाल की भाषा, जो आप बातचीत करते हैं। हालांकि आपको ज्यादा अंतर नहीं लिखता है। We all belong from the Bhojpuri belt, where the mostly Bhojpuri language is using. But if you visit to 9 to 10 kilometers, move away from that place, you will found there is a difference in also Bhojpuri languages. They try to speak in a somewhat different manner and pronounce that word in a different manner. देखते हैं या बनारस इज टू मच। आप अपने ही इलाके में रहते हैं, वहां से 20-25 किलोमीटर दूर जाइए, थोड़ा सी भाषा का अंतर हो जाएगा, और साथ ही साथ पानी का स्वाद भी बदल जाएगा थोड़ा सा। आप बिल्कुल क्या चीज? कैसे? पानी का स्वाद भी बदलता है। आप अपने स्कूल पे अगर आप आरओ का पानी पीते हैं तो अलग बात है, नॉर्मल अगर आप पानी पीते हैं, हैंडपंप का पानी पीते हैं तो अलग है। हाँ, हैंडपंप का तो पानी का स्वाद अलग है ही। और
जो हैंडपंप का घर का पीते हैं और कहीं दूसरी जगह का पीते हैं उसमें डिफरेंस आता है, आता है। तो ये भी डाइवर्सिटी है, जगह जगह पे भाषा अलग दिखती है, पानी का स्वाद अलग दिखता है, ऑल इज रिलेटेड विद व्हाट, डाइवर्सिटी। नाउ India is a vast country and most probably yes, and here in this country 1600 languages are spoken. लैंग्वेज का मतलब भाषा से नहीं है, यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब सिंपल वे में डायलेक्ट से है। डायलेक्ट मीन्स बोली, डायलेक्ट मीन्स बोली, क्या है? हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट बोली है, ठीक है? क्लियर? देन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर इतने सारे रिलीजन दिखते हैं। सर लैंग्वेज है। If you talk about the religion in the context of religion, अब देखिए रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ तक हिंदू है, क्लियर, देन मुस्लिम, देन सिख, क्रिश्चियन, Jainism. Christian, then Parsi, then what? Jain, then Buddhist, and many more religions also, etc. Others पे बहुत सारे रिलीजन है। बहुत से लोग रिलीजन को नहीं मानते हैं, पंथ को मानते हैं। पंथ, जो पंथ का मतलब हो जाता है सेक्ट, जो डिफरेंट सेक्ट के हैं, अपने आप को किसी रिलीजन में नहीं, एक सेक्ट में मानते हैं। आप लोग छोटे शब्द को नहीं समझ पाएंगे लेकिन इतना समझ लीजिए, हिंदू हो गया, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, अदर्स, ज्यूस, many more religion also there. Confucius in China, Confucius, and the someone who doesn't believe in any religion, they are what? They are atheist. They doesn't believe in the supremacy of God. कि उनके लिए भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो वो लोग भी इस अर्थ पे सरवाइव करते हैं, करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब सरवाइव करते हैं, इट मीन्स दे ऑटोमेटिकली फॉर्म अ रिलीजियस ग्रुप। वो भी एक रिलीजियस ग्रुप में काउंट होने लगते हैं। क्लियर? देन अब देखिए, इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। डाइवर्सिटी और उसको अभी भी कोई नहीं समझ पाया तो पूछ सकता है कि diversity or discrimination, what is diversity and what is discrimination? Clear? Because little bit 10 minutes are left and we are going to understand about this. सर डिस्क्रिप्शन का नहीं समझ में आया है। किसका? डिस्क्रिप्शन का वर्ड आपका क्लियर नहीं है, क्या स्पेलिंग है बताइए? आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बताइए क्या वर्ड? स्पेलिंग बोलिए, स्पेलिंग बोलिए। डिस्क्रिमिनेशन बोल रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन बोल रहे हो तो ये ध्यान से देखो, ये क्या वर्ड है? डिस्क्रिमिनेशन। मैंने बताया था दो स्टूडेंट, आई थिंक दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट हैव लेटर ज्वाइंड दिस क्लास, जो बाद में ज्वाइन किया उनको समझ आएगा। इस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब उसी समय में बताया, भेदभाव। इसका मतलब सिंपल सा है, भेद भाव। सर बुद्धिस्ट के बाद क्या लिखे हैं? बुद्धिस्ट के बाद अदर्स लिखे हैं, उसके अलावा भी अदर्स अन्य रिलीजन के भी लोग रहते हैं। और मैंने फिर बाद में एथीस्ट लिखा है। एथीस्ट, एथीस्ट माने कि तो अनश्वरवादी हैं, जो ईश्वर के अंदर, जो नास्तिक हैं, जिनका ईश्वर के अंदर विश्वास नहीं है, तो वो भी एक रिलीजन का ग्रुप, रिलीजन नहीं है लेकिन एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं
और वो ग्रुप क्या है? एथिस्ट ग्रुप है। Clear? Then the one today we will understood about the two words prejudice. Prejudice. What is prejudice? Prejudice means to judge. Prejudice means to judge. To judge. Judge other people सर negatively. आपका वीडियो खिंचा रहा है। अरे बेटा वो नेटवर्क प्रॉब्लम आपके हैं तो हम अच्छा क्या नहीं कर आ रहा वीडियो। सकते? अब चुप रहिए। उस तरह की प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। Prejudice means to judge other negatively, other people negatively, other people आप देखिए ना सर, वॉइस नहीं आ रहा, एक मिनट देख लीजिए। other people negatively, other people negatively, other people negatively, or see them, or see them as inferior. Inferior. Is it clear? अब ये प्रिजुडाइस जिसको आप मान्यता भी मान सकते हैं, मान्यता टाइप का है, ठीक है? हिंदी में नहीं मान्यता। सर सर देम के आगे क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? एक मिनट। देम एज एज वो थोड़ा दिख नहीं रहा है लाइट की वजह से। इस वर्ड को मैं इधर लिखता हूँ, उसके नीचे देम के बाद देखिए इधर थोड़ा जगह कम है। सी देम। सर लास्ट में सी देम के बाद क्या लिखे हैं? देम के बाद लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, मैं बोलता हूँ लिखिए एज इंफीरियर। एज इंफीरियर हो गया? नोट डाउन कर ले, क्योंकि मैं इधर फिर लिखूंगा। अगर इधर लिख रहा हूं देखिए एज इंफीरियर, वो लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है, इंफीरियर। इज इट क्लियर? एज Yes, sir. यस सर। मतलब आप इसका मतलब ये है कि आप मन में एक निर्णय बना लेते हैं किसी चीज को लेकर, होता है। अब मैं समझाऊंगा। और वो निर्णय लोगों के प्रति नकारात्मकता का होता है, सकारात्मक रवैया नहीं होता, मतलब पॉजिटिव वे में नहीं सोचते हैं। सर इन क्या लिखे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, Negative क्लियर में नहीं आ होता रहा है। है। इंफीरियर है, ध्यान से देखिए। इन सर यहाँ पे लिख दीजिए, बोल दीजिए, हम लोग देख करके लिख लेंगे, सुन करके लिख लेंगे। इंफीरियर मैं बोल रहा हूँ, स्पेलिंग सुन लीजिए। एस के बाद इंफीरियर, आई एन एफ ई आर यस आई सर, थैंक यू ओ सर। आर। सर क्लियर सर, लिख लिया हूँ। लिख लिया हूं। अब देखिए ध्यान से कि मतलब आप दूसरे के प्रति एक नेगेटिव थॉट बनाते हैं, और वो नेगेटिव थॉट ऐसा होता है कि उसको आप अपने से नीचा समझते हैं। क्या इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं आप? बताइए। जैसे हमारी कंट्री में एक लोगों के मन में प्रिजुडाइस है कि द शेड्यूल कास्ट आर, सर इनइक्वालिटी, सर इनइक्वालिटी एंड yes, diversity also leads to discrimination, and discrimination is also tell about the inequality. It's create a situation in the society is related with inequality, असमानता। कास्ट सिस्टम, yes, कास्ट सिस्टम जो है, वो कास्ट सिस्टम क्या है कि अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वाले को अपने से क्या समझते हैं? इंफीरियर समझते हैं। So this is also, and the people also think in a negative way, not in a positive way. Is it clear? यस सर। So this is prejudice, and
ये कहीं लोगों के मन में अवधारणा घर कर गई है और सदियों से चला आ रहा है और अभी तक लोग उसको एडॉप्ट किए हुए हैं। ठीक है, this one, and the one example is this: in our country, if any people is speaking English, it means some people are thinking he is better than the Hindi speaking people, या वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको ज्यादा समझ में आता है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ हम भाषा के आधार पे नहीं कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज superior and the better than the what Hindi speaking people. Clear? Yes, sir. आज इतना ही डिस्कशन रहेगा और प्रेजुडाइस और इतना सब के अंदर किसी को अगर पूछना है, who want to ask or inquire about something, he or she will ask. No, sir. Nothing. No, sir. I think it's going. Sir, कितना Time is clear going to कर be रहे हैं at आप? just within 2 or 3 minutes are left. I think so. So you can ask. Because tomorrow we are talking about the another example regarding, आपने सुना होगा फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली की ऐड देखते हैं आप कि एक लड़की थोड़ी सांवली है, Yes, जॉब के sir. लिए जाती है, वो रिजेक्ट हो जाती है, तो फेयर एंड लवली लगाती है तो उसको जॉब मिल जाती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि आफ्टर सम टाइम द फेयर वर्ड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट क्रीम, whatever they will use the word, but they cannot use the word fair. It means कि जो काला है उसे जॉब नहीं मिलेगी। यह क्रीम जो है काले से गोरे होने का दावा करती है। ऐसा होता तो जो अफ्रीकन पीपल है वो बिल्कुल क्या होते, व्हाइट कलर के हो जाते, लेकिन आज तक उनका कलर बदला नहीं। So this is all become the part of what? Advertisement. ये सिर्फ बेचने का ढकोसला है, धंधा है। तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा? प्रेजुडाइस। एंड नहीं, धोखा देना नहीं, मींस हियर द व्हाइट पीपल थिंकिंग दैट द ब्लैक पीपल आर इंफीरियर देन अस। इट मींस हो जाएगा ना, ये काले लोगों के मन में एक अलग सी एक कह सकते हैं कि गिल्टी फीलिंग होगी या एक नेगेटिव थॉट आएगी। या आप अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में जॉर्ज फ्लाइड, जिस व्यक्ति को अश्वेत कलर का था, ब्लैक कलर का था, उसे किल किया गया, मारा गया, पुलिस ने मारा। तो पूरे वर्ल्ड में जो ब्लैक लोग हैं उन्होंने व्हाइट लोगों के प्रति एजिटेशन